but in a completely different context. I think it is customary in your organization that at whatever time you meet, you say each other good morning. Even if you meet in the evening, you say good morning. I was really thrilled by that concept. But when I came to a function like this and when I saw that there are people from Madras, there are people from Tamil Nadu, people from Hyderabad, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, my son-in-law and Aditi, my daughter. Then I think that I should say good morning. Some participant said good morning New Delhi. I think that the real way in which one can address yourself is good morning India. Because you represent India. I can see the entire Indian population here represented by each one of you. There is yet another thing which I noticed, and I must tell you that I very vividly noticed that. Some people spoke in a language, mother tongue, which is their first language, which I did not understand. I think those people were from Hyderabad, and I did not understand their language. But there is one sparkling ray of hope and the element of synergy that I found in the voice of each one of you. And that was really inspiring, it was assuring, it was refreshing. And I must congratulate all of you. There are only two things before I give back the mic to my son-in-law. I think it was Indira ji who was told by her grandfather. Her grandfather, as you know, Jawaharlal ji's father, Motilal ji, who himself was a very renowned senior advocate of Allahabad High Court. And I think Indira ji had written this, that when she had gone to her grandfather and asked her grandfather that, what should I become in life? So her grandfather Motilal ji told her that, look here Indira, there are three types of categories in this world. Category 3, class 3, it belongs to those people who himself will do nothing, but they will go on blaming the others for whatever they do. And there are plenty of them. Class 2 consists of those persons who also will do nothing, but who will try to take the credit of others to themselves. Surely there are not as many as people belonging to class 2 as there are class 3, but surely there are more people even in class 2 also. Indira then asked him, what should I actually do? So he said, look, there is another class, that is class 1, who do not ask for any credit, but credit comes to them because they make credit come to them because of the hard work that they put. Please try to go in that category because the crowd there is less in the first category. There are very few people who belong to that category. Please try to go to that category. This was the second last thing which I wanted to say this. The last thing that I want to say in the presence of all of you does not need mic. It only needs only one thing. And that one thing is this. Wow. Thank you very much. Good morning. My name is Rama Kedardev. I am DUCD. DUCD Jana Thamia. Thank you. Yes, good morning. अरे ये दिल्ली है या हैदराबाद है? दिल्ली है तो दिल्ली जैसा भी आवाज आना चाहिए. गुड मॉर्निंग. नाम अदिति केदार देव. हम लोग पुणे से हैं. हैदराबाद में भी सेलिब्रेशन हुआ था, तभी पूरी स्टोरी बताई थी. यहाँ पे भी थोड़ा मैं बोलती हूँ मेरे बैकग्राउंड के बारे में. अभी आप लोगों ने देखा मेरे मम्मी डैडी आए हैं. विनिंग टीम और वेस्टिज क्या है वो उनको पता भी नहीं है, लेकिन मैं जो उनको प्रोडक्ट्स देती हूँ वो यूज़ करते हैं और ईमानदारी से यूज़ करते हैं. तो विनिंग टीम और वेस्टिज के फंक्शन में फर्स्ट टाइम वो दोनों आए हैं. मेरे डैडी सीनियर एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में. तो शादी से पहले थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बोलती हूँ.
मेरा स्कूलिंग पूरा पुणे में हुआ था, सिम्बायोसिस स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। कॉलेज भी मेरा होटल मैनेजमेंट हुआ है। मैंने बैचलर्स पूना से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लेडन से किया 2 साल। तो उसके बाद तो तभी ऐसा पैसों की कुछ चिंता नहीं थी। मम्मी डैडी ने कभी कुछ कम नहीं पड़ने दिया। जो चाहिए था वो सब उन्होंने मुझे और मेरे भाई को दिया। तो पैसों की कभी कुछ कमी नहीं थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। हमारी शादी हो गई 2011 में। सॉरी, मैं अभी भूल गई थी, 2011 में हो गई स्टेज पे आके। तो 2011 में हमारी शादी हो गई। शादी से पहले केदार के रेस्टोरेंट थे, एक रेस्टोरेंट था पूना में, प्योर वेज रेस्टोरेंट। और शादी के बाद 2014 में और एक रेस्टोरेंट हमने शुरू किया, वेज नॉन वेज और बार था, वो रेस्टो बार। 10,000 स्क्वायर फीट में सी फूड रेस्टोरेंट, पुणे में सबसे बड़ा रेस्टोरेंट हमारा था। और उसके बाद GST आ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, और सबसे बड़ा सेटबैक हमको जो मिला वो था जब 500 मीटर्स लिकर बैन। हमारा रेस्टोरेंट पूरा हाईवे पे था, जो 500 मीटर लिकर बैन आ गया तो हम ऑलमोस्ट लॉस में ही चले जाने लगे। वैसे फिर भी 7 मंथ्स हमने सिर्फ फूड पे रेस्टोरेंट चलाया, लेकिन फिर वो बहुत कठिन होने लगा क्योंकि हमारे पास 100 से ऊपर स्टाफ था, तो एक्सपेंसेस बहुत थे। तो वो रेस्टोरेंट भी हमने बंद किया। उसके बाद हमने और 250 मीटर्स के अंदर रेस्टोरेंट शुरू करना था, तो और एक रेस्टोरेंट शुरू किया सेम सी फूड। लेकिन उसमें क्या हो गया, हमें कुछ वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो लगता है वो मिला नहीं, इसलिए कुछ लाइसेंसेस मिले नहीं। ऑलमोस्ट 1 CR वहाँ पे हमने खर्च किया था, तो वो भी रेस्टोरेंट हमें बंद करना पड़ा। तो ऐसा हम सेटबैक बैठने लगा, इतना बड़ा सेटबैक बैठने लगा कि ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के कर्जे में हम चले गए। और फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में तो सबको पता है किसकी क्या क्या हालत हो गई थी। तभी वेस्टिज हमारे लाइफ में नहीं था, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो गई। अभी मैं सोच रही हूँ, अगर वेस्टिज लॉकडाउन से पहले हमारे लाइफ में आता था तो ये 1.25 करोड़ का कर्जा भी नहीं होता था, और लॉकडाउन में इतना सारा पैसा आता था और हम आराम से बैठते थे घर पे। लेकिन लॉकडाउन में घर पे आराम से तो बैठते थे, लेकिन कर्जा था सर पर। तो वो कर्जा इतना बड़ा हो गया, रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबसे पैसे मांगे, तो किसी ने मदद की, किसी ने हाँ बोला, किसी ने नहीं बोला, लेकिन बहुत तकलीफ हो गई थी। तो इसमें से बाहर जाएंगे कैसे, वो हम सोच रहे थे। और फिर वेस्टिज बिजनेस आया हमारी ज़िंदगी में, तो हमने काम कैसे किया और थोड़ा सर भी बताएंगे। यस, गुड मॉर्निंग। नाम केदार प्रसाद देव है और पुणे से हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ विनिंग टीम का, जिसने बहुत बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें ये मंच से रिकग्निशन की दी। आदमी उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी सांसें मर जाती है। आदमी उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी सांसें मर जाती है। आदमी उस दिन मर जाता है जिस दिन उसकी इज्जत छीन ली जाती है। जिस घर में रोज के 3 लाख रुपए आते थे, उस घर में 50 रुपए के लिए भी लॉकडाउन में मोहताज थे। और 1.25 करोड़ का कर्जा हुआ था, आरती जी ने तो बोला है। बहुत सारे बैंक, कंपनी, NBFCs, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल्स, उनसे हमने कुछ मदद मांगी थी, तो उन्होंने मदद की थी, लेकिन हम लोग उनका कर्जा टाइम पे चुका नहीं पाए, तो लोग फ़ोन कर करके बहुत परेशान करते थे। एक समय ऐसा भी आया कि हमारे एक क्लोज रिलेटिव ने पैसे के लिए इतना तगादा कर दिया। आखिर मैं उनको बोला कि हम लोग अभी लॉकडाउन है, पैसा नहीं दे सकते, तो वो बोले आप अपनी किडनी बेच के पैसे दे दें। तो किडनी बेचने तक की भी टाइम आ गया था, इतनी खराब परिस्थिति चल रही थी। तब कुछ आगे जाने, कुछ सर्वाइव करने का कोशिश कर रहे थे। तब अभी मम्मी पापा ने
हमें कुछ थोड़ा सपोर्ट किया, बहुत सारा सपोर्ट किया। और एक सपोर्ट करते टाइम एक वाक्य उन्होंने बोले, एक सेंटेंस वो बोले थे हमसे, जब तक आपके पंख में ताकत नहीं आती तब तक हम आपके पीछे खड़े हैं। तो थैंक यू आई बाबा। एंड हमने वहाँ से फिर अपना पंख जो है वो फैलाना शुरू कर दिए। आपने स्टोरी में सुना होगा कि हमने हमारी पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में हम लोग आ गए, कंपनी की डीलरशिप ले ली। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया और तब जाके मैंने महसूस किया कि ये भी इंडस्ट्री मेरे लिए सेफ नहीं है। तो जिंदगी में इतनी बार ठोकर खाई है, लेकिन जो लास्ट ठोकर हमने खाई वो एक्सीडेंट की, तब जाके आंखें खुल गई कि अगर सिर्फ उस दिन मेरी कलाई टूट गई थी एक्सीडेंट में, आगे जाके कुछ हो जाता था तो मेरी बीवी और मेरी छोटी 5 साल की बच्ची कहाँ जाएंगे। नो डाउट उसको सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट उसको बहुत बेहतरीन है, लेकिन हर एक के पास ऐसा सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो अपनों पैसिव इनकम सिक्योरिटी के लिए हमने ये बिजनेस करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर कर्जा है? दूसरा मेरा सवाल है, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के ऊपर कर्जा है और उन्हें वो पसंद है? अभी एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? कर्जा उतारने के लिए हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? अभी ग्रीन रूम में भारिल सर जो बातें कर रहे थे वो तो ओपनली शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जितिन लदानी सर ने अभी उनके स्पीच में कहा है, जब तक परिस्थिति ठीक है तब तक काम कर लो, परिस्थिति बिगड़ने के बाद आपकी मनस्थिति भी नहीं रहती काम करने की। तो बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। और 4 सितंबर 2020 को हमने वेस्टेज बिजनेस शुरू कर दिया। कौन कहता है 1 साल में हमने DUCD ये रॉकी म्यूजिक हमने अचीव कर लिया? उसके लिए 20 साल की मेहनत थी हमारी, 20 साल का सपना था जो आज पूरा हुआ है। तब वो गधा था और ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो हमने ये 4 सितंबर 2020 की ज्वाइनिंग है। एक्चुअली हमने काम करना शुरू कर दिया पिछले FRU जो हैदराबाद में और अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद FRU में तब तक हम लोग सिल्वर लेवल पे थे और मैं बहुत निगेटिव था। निगेटिव नहीं था, मैं न्यूट्रल था तब तक वेस्टेज बिजनेस के लिए। अदिति मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि हम लोग फैमिली रियूनियन अहमदाबाद चले जाए। तो एक कंडीशन मैंने उनको डाली कि मैं सिर्फ ड्राइवर बन के आऊँगा और बच्ची के साथ खेलूँगा, मैं अंदर नहीं आऊँगा। फैमिली रियूनियन मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे फंक्शन में ऐसे आप जो करना है वो कर लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन 1-2 सेशंस मैंने अटेंड कर दिए, फ्री का खाना मैंने यहाँ पे खाया, तो वहाँ जाके एक्साइट हो गया। और फिर रिटर्न पुणे जाने के बाद हमने डिसीजन ले लिया कि अभी पूरी टीम के साथ हम लोग हैदराबाद चले जाए। और वहाँ पे सलीम सर का, श्रीनिवास सर का सेलिब्रेशन देखा और ये महसूस किया कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर वहाँ पे हमने डिसीजन ले लिया, हमारे अपलाइन मयेकर सर को हमने वहाँ पे कमिटमेंट कर दी और हम क्राउन जाने का डिसीजन वहाँ पे कर लिया। और हम लोग मार्च महीने में क्राउन चले गए और फिर पुणे को क्राउन अटेंड कर दिया। और फिर कुछ मिसिंग लिंक्स थी, तो वो मिसिंग लिंक्स ढूंढने के लिए हम लोग फिर से दिल्ली को क्राउन सितंबर में आ गए। और यहाँ पे हमने डिसीजन ले लिया कि 31 दिसंबर तक इस साल यानी 2023 पिछला साल DUCD जाना ही जाना है। हमने स्टेज से अनाउंस कर दिया। एक्चुअली ये दिल्ली हमारे लिए बहुत लकी है, यहाँ पर हम जो कमिटमेंट करते हैं वो 90 दिन में जाके पूरा कर देते हैं। आज भी मैंने बहुत सारी कमिटमेंट भारी सर को कर दी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट माय अपलाइन, तो अगले 90 दिन में वो भी पूरी हो जाएगी। और मैसेज एक देना चाहता हूँ कि अगर आपकी परिस्थिति बदलनी है तो आपकी सबसे पहले मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। मनस्थिति जब आप बदलोगे तब आपकी परिस्थिति 100% बदल जाएगी। एक बड़ा डिसीजन ले लो और उसके साथ टिके रहो और उसके जैसा काम करो और पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले कभी इतिहास रचा नहीं करते। हम लोग दोनों जो काम करते हैं, हम लोग दोनों मैड है, मैड।
मैड का फुल फॉर्म है मैसिव एक्शन डेली। आज भी DUCD होने के बाद आज भी हम लोग खेती में जाके किसानों को एग्री प्लान दिखाते हैं, जमीन पे बैठ के दिखाते हैं। आज भी 1-on-1 मीटिंग करते हैं। आज भी हम लोग ओपन प्लान में जाते हैं। आज भी हम लोग CEP सुनते हैं। मॉर्निंग CEP में भी हम लोग अटेंड रहते हैं। आज भी हम लोग फेस मीटिंग करते हैं। आज भी हम लोग CO प्लान करते हैं। आज भी हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। आज भी हम लोग स्पॉन्सरिंग करते हैं। ग्रुप में शायद देखा होगा कुतुब मीनार का हमने एक वीडियो फोटो डाला था और वीडियो भी डाला था। तो आज भी हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं क्योंकि हमें जो है एक्चुअली एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, टाइम खत्म हो गया। लास्ट की एक चीज है, क्रिकेट मैच, क्रिकेट सबको मालूम है क्रिकेट। तो क्रिकेट कोई टीम अगर मैच या वर्ल्ड कप जीतता है तो कप लेने कौन जाता है? आज हम हमारी टीम के कैप्टन हैं और ये जीत जो है ये हमारी पूरी टीम की जीत है। बस हम लोग कैप्टन होकर सिर्फ आगे स्टेज पे आए हैं। किसी ने 100 रन बनाए, किसी ने 200 रन बनाए, कोई 5 रन बना के आउट हो गया, कोई 0 रन करके आउट हो गया। तो टीम जीती हमारी टीम है, हम सब सिर्फ कैप्टन है। तो दोस्तों डिसीजन ले लो, डिसीजन लेने में बहुत ताकत है। फेथ रखो खुद पे, कंपनी पे, विनिंग टीम पे, प्रोडक्ट्स पे और कूद पड़ो। जैसे फिनिक्स पक्षी रहता है जिसको डाली से नीचे गिरने का डर नहीं रहता, वैसा कूद पड़ो और विश्वास रखो कि अगर आप डिसीजन लोगे तो ये आपके साथ भी हो सकता है। जैसे हमारे साथ हो सकता है वैसे आपके साथ हो सकता है। इफ वी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।